my dear students. Hello, hello, hello. Bacho, we'll get started in few seconds. Hello, 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 hello. I can see a lot of Josh in the class right now. I can really feel the energy. इतनी energy कहाँ से लाते हुए? कौन सा? And I can really see a lot of Joe's science transformation, catastrophic, always there. Shreya, Samank, Mannat, Shivam, and Rudransh. क्या Uh, okay, Dipanshu is here. Me Gupta, welcome, bache. Welcome, welcome, welcome. So let's actually start our session for today. And obviously, I can see the Josh that you have as always, and I can feel that. So Ayushman, hello, beta. Chali. So if you have not subscribed to this channel, please do so right now. And as I was mentioning, and we have crossed 1,000 subscribers, but unfortunately, my time is not permitting me to do a lot of activities here. And I will very soon start giving you free content, more content. Free content तो अभी भी आ रहा है. We'll give you more free content of Olympiad level. So, and also you get updates about the upcoming classes here. So please, Khayati beta, and I know you're part of this already. So please everybody subscribe to this awesome channel so that you can get the updates here. So let us get started with today's session. So obviously आपका जोश पूरा है, I can feel that. Quadratic equation is one of the easier of all equations than linear two. रुद्रांश की बात में दम है. नीतू बेटा, welcome as always. So today what we are going to do is go further with these equations here. My introduction, Bhavdeep Sethi, IIT Bombay M.Tech. And I always convert physics haters into physics lovers. And there are so many students who come to my classes and say, सर पढ़ाई से डर नहीं लगता, फिजिक्स से लगता है. And then I tell them, take 5 classes का challenge. You study with me for 5 classes and then you will start loving physics. है ना? क्योंकि फिजिक्स को अभी तक आप रट्टा मारते थे. फिजिक्स को याद करोगे, मेमोराइज करोगे, तो देन फिजिक्स बुरा मान जाएगी. और ऑब्वियसली फिजिक्स बुरा मानती है तो एग्जाम में बदला लेती है ना? नॉट जस्ट इन द एग्जाम, इट माइट कम इन योर ड्रीम्स एंड से हु हा एंड ऑल दैट. सो फिजिक्स को रट्टा नहीं मारना है, बहुत गलत बात है. फिजिक्स को रट्टा नहीं मारेंगे. So today we are going to start with the quadratic equation, and this picture obviously demonstrates it's more like a parabolic shape, and that's the reason I put it here. So beyond books basics की पढ़ाई करते हैं. So why accelerate math very quickly? क्योंकि if you are thinking of studying for any Olympiad level है ना exam, चाहे वो NSCP हो, चाहे IOQM हो, or maybe you want to go to the international level. So whatever you're trying to study for the higher level, first of all, your basic concepts have to be clear. NCRT, the best books, I would say. But the problem here is books are good, but schools will take months and months to cover that, and that's why we have taken the initiative to do one chapter in one session, and that has been working very beautifully because the kind of josh that we get in the class, and also after the class, I get so many personal comments. Sir, अगली class आज शाम को एक और कर दो, कल सुबह कर दो. Those kind of josh we are talking about. So with that josh, I can really है ना tell you कि भाई इतना ज्यादा enthusiasm है कि we have to like really think about other subjects as well, obviously, है ना. So in a nutshell, what we are going to do is we'll complete one session in one YT session, 13 chapter, 13 sessions and 13 days की बात हो रही है यहाँ पर. Free for all, there's no catch कि थोड़ा सा भी पढ़ा देते हैं, बाकी के लिए आप फीस दे दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. It's free for all. There is no hidden terms and conditions. Theory होगी, practice problems and PYQs. Everything will be covered. Homework will be given on that Telegram channel. VOS Beyond Books Brigade पर आप जाइए, आपको अभी 5:30 यहाँ पर होमवर्क मिल जाएगा. So this course will not spoon feed. We are not going to spend the entire session solving all the NCRT questions. We'll solve few, and expectation is कि भाई उसके बाद आप खुद मेहनत करोगे. Similarly, we're not going to do repeat questions कि भाई एक क्वेश्चन करा दिया, 2-4 नंबर बदल के और करा दिया, जिस कहते हैं ना रट्टे मारने वाली बात, वो सब नहीं करेंगे. कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे आपके, उसके बाद इट्स completely up to you कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो. The entire full syllabus will be covered today.
So before I start the session today, take this pledge, fill in your name, say I pledge to never memorize physics and maths. And the way to take that pledge is this way, है ना? Cross, no memorization. Everybody, Devansh beta, Shivam beta, please start fast. Shivam, पहले एक pledge ले लो यार. Take the pledge, give me a thumbs up that you have taken the pledge, and then only I can start. I will not be starting without this pledge. क्योंकि अगर आप इस pledge को नहीं लेने को तैयार हो तो आप गलत क्लास में आ गए हो. You are going to be bored in today's class. If you're thinking of memorizing, then there's no point in being in today's class. I'm not being rude. I'm trying to save your time. अगर इस छोटी सी pledge को आप ले लेते हो और मानते हो, then things are going to be very interesting. So basics of quadratic equations से start करेंगे, but I don't think I have started my writing pen here. So let me do that first. तो हमारा writing pen आ गया है. And basics of quadratic equation, we are going to start with where we left in one of the previous sessions कि भाई equations जो होती हैं, है ना, they can be linear, they can be quadratic, they can be cubic. So if you start by linear equations, let me use the white color pen here. So linear equation, the word comes from line. This implies line. मतलब या तो ये ऐसे बनेगी या फिर ये ऐसे बनेगी. This is how linear equations work. If you think about quadratic equations, quadratic means 2-degree equations, and you all know that. I'm just going to recap so you have a bigger picture here. So quadratic is more like ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, depending on the equations. It's a parabola basically. Then cubic की अगर हम बात करेंगे, so cubic can be either this way, and so forth. So we are going to focus on quadratic equations. So quadratic equations क्या होती है? Degree 2 की equations, जैसे कि 5x², it's a quadratic equation, plus 6x, it's still a quadratic equation, plus 9y³. अब ये quadratic नहीं रही. Quadratic equation means 2-degree equation. We are going to solve them. We are going to look at how the roots are related to whatever. So today's agenda is simple: basics of quadratic equations, solutions, and also the nature of roots. Roots can be real roots, imaginary roots, equals, and so forth. Then we'll go to NCERT and PYQs. So fatafat se we'll go get started with this exercise. It says check whether the following are quadratic equations. Check whether. No sir, equation must have equal. हाँ, देखते हैं, है ना? So check whether the first one is quadratic. It is, because you can clearly see there is an x square and there is no x square there to cross that out. So basically, let me check this कि भाई this is a quadratic equation. Second वाली में आप देखोगे x square है, उधर भी x square है, minus हो जाएगा. This will minus हो जाएगा. So this is not, है ना, थर्ड वाली not a quadratic, क्योंकि x square है वो x square से कट जाएगा. यहाँ पर 2x square है, वहां पे x square होगा, x square रह जाएगा. Are you getting my point? Give me a thumbs up if you get it. कि जहां जहां x square रहेगा वो quadratic है. ये थर्ड वाली में नहीं था, यहाँ पर x square बनेगा is equal to x square उधर से कट जाएगा. Similarly, this is x³ यहाँ पर रहेगा, वहां पे 2x³ बनेगा, तो ये भी एक quadratic बनेगी. ये नहीं बनेगी, सॉरी, दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर इसका क्यूब करोगे तो बेटा आपको यहाँ पर x³ दिखेगा. आप ध्यान से देखो, यहाँ पर x³ दिखेगा और कुछ टर्म्स दिखेंगे, और उधर आपको दिखेगा 2x³, है ना? अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड में यू आर गेटिंग 2x³ plus dot something. So basically x cubes are not getting crossed out, and that is why this is not a quadratic equation. ठीक है, clear है? Easy वाला है ना, this is easy वाला. Obviously we are going to get started with easy वाला, then go further. So solutions of a quadratic equation. What are solutions? And this is where we are going to spend a little more time. So solutions का मतलब क्या होता है? Solution का basic मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई quadratic equation है, let's say x² plus 5x plus 6. ध्यान से देखिएगा, x² plus 5x plus 6. You're beginner, सुनील, that's fine, you'll get it. ये begin से ही शुरू कर रहे हैं सुनील बच्चे. इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, suppose I plot this graph. So ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ऐसा बनेगा. And I can show you there. So let's go to Desmos, our favorite thingy here.
सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 को, ये डेस्मोस अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस कम करूंगा सो दैट एवरीबडी कैन सी दिस क्लियरली। मेरी शक्ल से चाहे काली हो जाएगी, वे सांवला हो जाऊंगा मैं, but that's all right. So basically, if you go to this Desmos and desmos.com, है ना, you type in here, let's say x square, x to the power 2 plus 5x plus 6. तो आप इसको ध्यान से देखो, ये कर्व जो है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, it is crossing the x axis at -2 and -3. These are called the solutions. तो जब solution की बात होती है, like Stormax is telling us, solution basically means वो पैराबोला x एक्सिस को कहां पर काट रहा है। तो when we say roots, इसकी दो रूट्स, एक -2 और एक -3, और एक ट्राई करते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए होता क्या है। तो now let's try something. So let's say x to the power 2, that's x square, minus, let's say I'm still thinking as I'm speaking, I'm still thinking, so minus 7x plus 12, है ना, प्लस 12। तो अगर मैंने ये बनाया तो आप देखिए ये क्रॉस कर रहा है 3 पर और 4 पर। व्हाट दैट मीन्स इज, इसकी इस पैराबोला की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स है, इसकी दो रूट्स हैं, एक 3 और एक 4। सो x को आप 3 रखेंगे यहां पर, इसका मतलब क्या हुआ, x को आप 3 रखो तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 12 21 हो गया, -7 × 3 21, ये जीरो बन रहा है। ऐसे आप x की जगह 4 रखेंगे तो दिस विल बिकम अ जीरो। एंड दिस इज ऑल अबाउट सोल्यूशन और रूट्स। इट्स कॉल्ड सोल्यूशन, इट्स कॉल्ड रूट्स ऑल्सो। तो ये इस पैराबोला के दो रूट्स हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं। अगर मैंने यहां पर मैंने रख दिया समथिंग लाइक, लेट्स से x to the power 2, x to the power 2 प्लस 4x माइनस 6 प्लस 16 कर दे तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ बनने वाला है, प्लस 16, है ना। ये देखिए ये कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर चला गया, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, ये क्रॉस ही नहीं कर रहा है। This is not even crossing the x-axis. This is the x-axis. मतलब इसके roots imaginary हैं. We are going to do all this as per NCERT, but this is exactly what you are learning today. Root मतलब होता है कि कहां पर x-axis को कट कर रहा है। ये वाला जो पैराबोला है, लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, इसके इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं क्योंकि ये कहीं टच ही नहीं कर रहा है। एक लास्ट ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना, +4 कर देता हूं, देखिए +4 किया तो आप देखिएगा ये क्रॉस नहीं कर रहा, दिस इज क्रॉस टचिंग दिस इज टचिंग दिस हियर एट -2। सो इट हैज टू रूट्स विच आर इक्वल, दे आर सेम रूट्स। बेसिकली आप देखिए पॉइंट -2 पर वो टच करके चला गया। सो दिस पैराबोला हैज इक्वल रूट्स। अब इस सब को हम थ्योरी वाइज करने वाले हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एंड लेट्स गो एंड डू फ्रॉम द बेसिक्स नाउ, है ना। वी विल डू ऑल दिस इन काइंड ऑफ लाइक एनसीईआरटी वे। एनसीईआरटी में कैसे सिखाया गया है और हमारे सिलेबस में क्या है। तो अपने को थोड़ा गोरा कर लेता हूँ, तो थोड़ा ज्यादा ही काला हो गया था मैं। अभी ठीक लग रहा हूँ? ठीक है भाई, चले। गुड आफ्टरनून अंश बेटा। तो बेसिकली उसके इसके रूट्स या सॉल्यूशंस निकालने के 2 3 4 5 मेथड होते हैं। मैं दो तरीके भी कराने वाला हूं। वन मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब होता है जो मिडिल टर्म है उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट उसको प्लस करके 5 आ जाए। आपको दो डब्बे बनाने होंगे, है ना। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक टू डब्बास। लेट्स से आई डोंट नो व्हाट द रूट्स आर, सो व्हाट यू डू इज you make two boxes here and say I'm going to put the box here, box 1 plus box 2 should give me this 5, positive 5, है ना। And this box 1 multiplied by box 2 should give me a 6, should give me a 6। तो मेरे को ऐसे दो नंबर पता करने हैं, है ना, दो नंबर पता करने हैं जिनको जोड़कर तो 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए। तो ऐसे क्या नंबर हो सकते हैं, मैं बोलूं जोड़ के 5 आता है तो 1 और 4 मिला के 5 आता है, लेकिन 1 and 4 डज नॉट गिव मी अ 6। देन आई कैन से 2 and 3 रख के देखता हूं, 2 + 3 is 5, 2 × 3 अरे 6 होता है, होता है, मिल गया, यूरेका मोमेंट आ गया मेरा। तो यहां पर आप सिर्फ ये लिख दोगे, है ना, बॉक्स स्ट्रेटेजी।
तो अब आपने क्या करना है, बेसिकली 5 का जो है उसको स्प्लिट किया आपने 2 और 3 में इन सच ए वे दैट इट्स प्रोडक्ट इज 6। तो यहां 5 की जगह आप 2 और 3 लिख दोगे, मतलब आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इज हाउ यू फाइंड द सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है कि दिस इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, ये जो वैल्यूज में रखोगे 0 आएगा, वैल्यू रखोगे 0 आएगा, 0 आना चाहिए। अब इन दोनों का एक एक पेयर बना लो, मतलब ये दोनों दोस्त दोस्त, है ना, ये दोनों दोस्त दोस्त, ये दोनों दोस्त दोस्त। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, व्हाट इज समथिंग दैट यू कैन फैक्टर आउट, यू कैन फैक्टर आउट एक्स। इन दोनों में से एक्स फैक्टर आउट करेंगे आप। तो आपने यहां से एक्स फैक्टर आउट किया, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाला तो अंदर बचा एक्स प्लस, यहां से एक्स निकाला तो 2 बचा। यहां तक क्लियर सबको, है ना। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से 3 आता है, तो आप लिख दीजिए +3 एंड देन यू सी 3x में से 3 निकाल दिया तो x बचा, प्लस 6 में से 3 मतलब निकाल दिया तो 2 बचा, इज इक्वल टू 0। एंड नाउ हाउ ब्यूटीफुल यू कैन सी x प्लस 2 है, यहां भी x प्लस 2 है, तो इन सब में से, इस वाले में से और इसमें से, दोनों में से x प्लस 2 बाहर आ गया और अंदर बचा, इसमें से x प्लस 2 निकाला तो x रह गया और इसमें से निकाला तो 3 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब बिफोर आई प्रोसीड, एक कॉमन क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कई बार कि सर ये तो आ गया, हो सकता है हर बार ऐसा ना आए। अरे हर बार ऐसा आएगा बशर्ते कि यू आर एबल टू फाइंड टू नंबर्स लाइक दिस एक्सरसाइज is going to ensure that you're going to get something common here. This is what you will get. अब ये डब्बा स्ट्रेटेजी मैंने पहले भी करी हुई है। देखिए डब्बा स्ट्रेटेजी क्या कहती है, if there is a box here and I say there's multiplied by another box and I'm saying this is 0. Let's say there are two boxes here and I say multiplication of those two boxes is 0. एक बात की तो गारंटी है कि या तो ये बॉक्स 0 या फिर ये बॉक्स 0, नहीं तो मैं नहीं मानता कैसे 0 हो जाएगा, है ना। कॉमन सेंस लगा रहा हूं मैं, यहाँ कोई थ्योरी नहीं लगा रहा हूं, कोई बहुत हाई फाई बात नहीं कर रहा हूं। भाई दो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके 0 आता है, तो या तो ये डब्बा 0 या फिर ये डब्बा 0 है। बस वही तो चीज हो रही है यहाँ पर, ये डब्बा है मल्टीप्लाइड बाय दिस डब्बा इज 0, सो दैट मीन्स आइदर x प्लस 2 इज 0 और x plus 3 is 0. And that means x is equal to -2 और x is equal to -3। मतलब इसके दो रूट्स आ गए, -2 एंड -3। क्लियर है। अब इसका एक और मेथड होता है फॉर्मूला यूज करके, बट दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसको आप डेस्मोस में प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि दिस पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू -2 एंड दिस इज -3। दिस इज हाउ यू विल सी। सर पॉलिनोमियल्स में पार्ट कवर हो गया है, बिल्कुल सम्यक बेटा, है ना। आप जैसे अगर सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे तो मजा भी आता है मुझे, है ना। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। अब एक दूसरा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, वो ये होता है, सपोज मेरी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, where a is some number, it can be 1 2 3 4 5 and b is some number, c is some number, this is a quadratic equation and I want to find the zeros, मतलब solutions। तो या तो मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर लूं जैसे अभी किया, या दूसरा तरीका है फॉर्मूला यूज करके। सो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि दो रूट्स आनी है ना, एक बार प्लस ले लूंगा एक रूट आ जाएगी, फिर माइनस ले लूंगा एक दूसरी आ जाएगी। स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से द रूट्स, मैंने इसको थोड़ा सा बीच में लिख देता हूं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है मुझे खुद को। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसको इसको उस तरह से उसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। अभी मैंने ये किया था ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से किया था। अब इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से करके देखते हैं सेम रूट आती है क्या। तो मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखिए या फिर इस तरह से करके देखिए। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, क्योंकि आप पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे उसमें और यूज होगा ये।
बट वॉट एवर मेथड यू यूज यू शुड बी गेटिंग द सेम आंसर, एंड दैट इज माई होल पॉइंट कि आप दूसरे मेथड से करके देखते हो इसको। तो इसमें क्या है, दिस ए लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है इसमें 1, क्योंकि ए मतलब होता है एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का, सॉरी, है ना, एंड बी इज एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज 5, सो बी इज इक्वल टू 5, एंड इफ दिस वर -5 यू हैव टू राइट -5 देयर, बी केयरफुल अबाउट इट, एंड सी इज इक्वल टू 6। यहां तक तो मेरे को तीन वैल्यूज यहां लिख दी मैंने। अब मैं फॉर्मूला में भरना शुरू करता हूं इसको। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -5, सो लिखा -5 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, -4ac, ओके, -4 टाइम्स ए लिख ही देते हैं ना, 4 टाइम्स ए तो 1 है, टाइम्स सी है 6, डिवाइडेड बाय 2a, सो 2 टाइम्स ए तो 1 है, ये आ गया मेरे पास। नाउ बेसिकली -5 प्लस, ये देखो 25 -24 1 बन गया, ब्रैकेट के अंदर 1 बन गया, ये है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज x इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, प्लस ले लेता हूं तो x की वैल्यू आ रही है, देखिए प्लस ले लिया तो -5 प्लस 1, -5 लिख ही देते हैं ना, -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और या फिर आ रही है -5 -1/2, -5 प्लस 1 हो जाएगा -4/2 इज -2, or -5 -1 -6/2 is -3, and this is how you can get you will get the same roots. And when you are saying how to prove it, Rudransh, that clearly shows the kind of जोश you have. बिल्कुल, आज मैं प्लान करके नहीं आया था, टाइम लिमिटेड है मेरे पास, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट टू कवर, बट मे बी टाइम परमिट्स एट द एंड ऑफ इट वील कवर, अदरवाइज मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ सिंपल। अच्छा, मैं एक बात और फटाफट से रिपीट कर दूं, यूजुअली बुक्स में डेरिवेशंस आर 15-20 लाइन समटाइम्स, मेरा कोई डेरिवेशन 5 लाइन से ऊपर नहीं होता। इफ टाइम डजंट अलाउ मी टू डू इट नाउ, आई विल पुट इट टुनाइट इटसेल्फ ऑन द टेलीग्राम विद इन 5 लाइंस, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल तो ये है हमारे पास। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन वही है ना, जो हम फैक्टर्स बना रहे थे ना उसके मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो पहला देखते हैं, एक्स स्क्वायर -3x -10, इसको ध्यान से देखें। तो करना क्या है, हमें दो डिब्बा चाहिए, सो वी नीड टू बॉक्सेस विच एड अप टू -3। -3 क्यों, क्योंकि एक्स के साथ -3 है, 3 नहीं है, -3 है। देन वी नीड टू बॉक्सेस विच एड अप टू, oh sorry, they multiply to, this time they multiply to, and then they have to multiply to this constant term which is not 10, which is -10। तो मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो -10 हो और सम -3 हो, है ना, विद ऑल योर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट, व्हेन यू डू लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस यू विल क्लियरली सी, आपको दिख जाएंगे दो नंबर, है ना, दिख गए। देखिए रुद्रांश को, रुद्रांश कहता है सर एक काम करो, -5 और +2 ले लो, क्योंकि -5 + 2 -3 दे देगा, और -5 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया तो -10 बन जाता है। तो व्हाट यू डू, स्टार्ट बाय राइटिंग एक्स स्क्वायर माइनस -3x की जगह ये आ जाएगा, क्योंकि -3 को स्प्लिट किया है इसमें ना, तो -5x, देखिए -5x माइनस और +2x है ना, -10 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, आपने जो मर्जी किया, एक्चुअल इक्वेशन को चेंज नहीं किया। एक्चुअल इक्वेशन से इज -3, दिस इज -5 + 2 विच इज सेम, -3 हुआ। अब इन दोनों में से व्हाट डू यू गेट कॉमन, यू गेट कॉमन इज x, व्हाट इज लेफ्ट हियर इज x, है ना, x -5x का -5 प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x है और -10 है, ओ 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 ले लेते हैं कॉमन, and then you are left with x -5 is equal to 0, है ना, कुछ नहीं है इसमें यार। अब दो डब्बे बन गए, अब इसमें से ये जो चीज है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -5, तो x -5 बाहर ले आइए, x -5 बाहर आ गया, अंदर यहां पे बचा x, है ना, यहां पे बचा +2, and that is giving you 0।
अब या तो ये डब्बा 0 है, ये डब्बा 0 है, ये डब्बा 0 है तो x माइनस 5 0 है, तो x इज इक्वल टू 5 और x प्लस 2 इज 0, so x इज इक्वल टू माइनस 2, so you are getting two roots. डेस्मोस पे आप करके देख सकते हैं इसको। अब इसको चेक करना है भाई, मैंने ठीक करा गलत करा, तो आप इसको यहाँ फिल करके देखिए, मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया दे दो, एक करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ 5 रखोगे, यू शुड बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो 5 का स्क्वायर बनता है आपका 25, 5 टाइम्स 3 इज माइनस 15 है इधर, माइनस 10, देखिए कितना ब्यूटीफुली 0 बन गया। इसी तरह आप माइनस 2 रखोगे, ये बन जाएगा। क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए, क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए। फिर कोई और चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये वाला चैलेंजिंग लग रहा है, इसको उठाते हैं, फोर्थ वाले को, फोर्थ वाले क्वेश्चन को उठाएंगे यहाँ पे। चलिए फटाफट से इसको इरेज करते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पे। अच्छा जी, इतना कुछ रह गया यहाँ। हाँ चलिए, है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, तो फोर्थ करके देखते हैं, देन वील डू वर्ड प्रॉब्लम्स आल्सो, वील सी हाउ दे इजी दीज आर। तो अब है ना, हाँ बिल्कुल 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 उज्जवल, है ना, आई लव योर जोश बच्चे। सो फोर्थ वाला कह रहा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि फ्रैक्शन है ना, और यहाँ सब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो यार ऐसे केस में आप पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना, है ना, लाइक ऑल इनवर्स वन इज सेइंग, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये पूरी इक्वेशन 8 से मल्टीप्लाई होगी तो 16 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, राइट में जीरो को जो मर्जी था जीरो ही रहेगा। सो दिस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड एज 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए कितना सिंपल हो गया, बस मैंने ये दिखाना था, है ना। बट अब इसमें एक और कैच है, एक और कैच है। तो दो डब्बे जो बनेंगे ना, दो डब्बे थोड़े से डिफरेंट बनेंगे इसमें। तो डब्बा जो है, those boxes should add up to those boxes should add up to this number, which is -8. It's not 8, it's -8. First of all, that should be -8. And that addition should be -8. But what about multiplication? When you multiply them, you should not be getting 1. 1 तो इसलिए था यहाँ पे वो था. So I'll write it here as sum should be coming as B. B मतलब ये जो B होता है बीच का, और प्रोडक्ट जो होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड कम एज A टाइम्स C। प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके होना चाहिए। अभी तक जो इक्वेशंस हमने देखी थी उनमें 1 था ना, इसलिए हम ऐसे छोड़ रहे थे, लेकिन A और C का प्रोडक्ट इनको मिला के होना चाहिए, मतलब 16 होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, दो नंबर ऐसे चाहिए हमको जिनको ऐड करके -8 आए, बिकॉज दिस इज -8, बट मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 टाइम 16। तो ऐसा कौन सा नंबर है क्या कोई? मुझे समझना नहीं आ रहा, बताइए। हाँ, -4 and -4. So you write -4 here and -4 here. So you clearly see -4 gives me -8 when you add them. But when you multiply -4 and -4, you get 16. And this is, इसके बाद आप खुद ही कर लोगे, है ना। अब एक दूसरा तरीका भी है, like शालिनी is saying, क्या बात है शालिनी, छा गया बेटा। So you can visualize this as, if you see with experience you'll see that this looks like 4x -1 का होल स्क्वायर, वही तो लग रहा है। देखिए आप, 4x -1 का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे ये, क्योंकि 4x मतलब a² 16x² -2ab -8x प्लस 1, वही तो है ये। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू कैन डू एज अ थर्ड मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो आप कोई भी मेथड करोगे, आपका आंसर वही आएगा। जब आप इस तरह से फैक्टर करोगे, आपको यही मिलने वाला, आपको मिलने वाला है 4x -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, x की वैल्यू 1/4 मतलब क्या हो रहा है, ये पैराबोला ऐसे टच करके जा रहा है यहाँ पे 1/4 पे। देयर इज ओनली वन रूट ओवर हियर। चलिए आगे चलते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, एक्सरसाइज 4.2 का आपका क्वेश्चन है, मैं इसीलिए लेकर आया हूं, इतने भारी भरकम क्वेश्चन लगते हैं, ये चुटकियों के खेल होते हैं। Cross multiplication method, time permitting. I'm just using the methods today which are in syllabus. This is accelerated math. And as I have promised, after the series is over, I'm going to bring deleted portions. I'm going to bring physics also after this.
आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग 9th का सिलेबस ऑल्सो, है ना। अभी आज मेरा पूरा एजेंडा है 13-14 डेज में सिलेबस खत्म करना है आपका। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced in a day. ये घुमाने की बात है और कुछ भी नहीं है, घुमा रहे हैं जबरदस्ती। If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced at the cost of each article. ये बात मैंने पहले भी बोली है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। इंग्लिश मेरी समझ नहीं आती, पंजाबी में लिखा होता पंजाबी मेरी समझ नहीं आती, ओडिया में लिखा होता मेरी समझ में नहीं आती। मुझे क्या समझ में आता? मैथ्स, ओनली मैथ्स। तो ये जिस मर्जी लैंग्वेज में हो, गुजराती में हो, मराठी में हो, पंजाबी में हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, whatever language that is, you have to convert that into mathematics language, which is equations. So for equations, you need some variables. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article, मतलब एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा, let it be X. Let cost of one article, let cost of one article be X. है ना, सब मान लेते। It was 3 times more than the number of articles produced. So let number of articles be Y. मतलब एक को बनाने का खर्चा X है और टोटल मैंने Y बना दिया, तो मेरा टोटल कितना खर्चा आ गया भाई? अगर एक को बनाने के लिए 10 रुपए लगते, ऐसा सोचो, एक को बनाने में 10 रुपए लगे और 5 बना दिए, तो टोटल 10 टाइम्स 5 लगेगा ना खर्चा, 50। एक को बनाने में 15 खर्चा आता है और 10 बना दिए तो 15 इंटू 10 होता। तो एक को बनाने का कॉस्ट X है और टोटल Y बना दिए, तो टोटल कितना एक्सपेंस आया? टोटल एक्सपेंस आया X मल्टीप्लाइड बाय Y। यहां तक क्लियर है सबको? लेकिन बात जम नहीं रही बेटी, क्योंकि अब दो दो वेरिएबल आ गए, मेरे को एक ही चाहिए। तो अब वो आगे बता रहे, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, cost of production of each article, this is where I'm converting English to math. So cost of production of each article, cost of production of each article was, this is was 3 more than twice the number of articles produced on that day. See कितना easily English to math conversion है, इसी तरह आप करिएगा। So the cost of production of each articles is or was 3 more than twice the number of articles. क्या बात है? तो ये जो x है ना, इस x की जगह मैं सिंपल, ये जो x है इसकी जगह मैं ये रख देता हूं, दिस इज द कॉस्ट पर आर्टिकल। ये कॉस्ट पर आर्टिकल है, टोटल आर्टिकल्स इतने हैं, तो टोटल कितना खर्चा आएगा? टोटल इतना खर्चा आएगा भाई, कॉस्ट पर आर्टिकल इंटू नंबर ऑफ आर्टिकल, सो 3 + 2y। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो नंबर तो 90 था, उन्होंने बताया वो नंबर 90 है। ओके, मान लेते हैं भाई वो नंबर 90 है, तो ये इतना खर्च आया, बोलते 90 है। बस अब कुछ भी नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2y² + 3y - 90 = 0। यू सॉल्व दिस। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, नेचर ऑफ रूट्स, है ना, नेचर ऑफ रूट्स। सो बेसिकली दिस इज समथिंग इन योर एनसीईआरटी बुक which is very very common sense. Two distinct real roots. अब common sense क्या है यार? common sense ये है, देखिए मेरी बात सुनिए। The first chapter that we studied, real numbers का, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 करना है तो वो कितना आता है? 2 आता है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -4 करूंगा तो दिस इज क्या है? ये दिस इज अ रियल, इट्स अ रियल रूट। बट दिस इज ऑल इमेजिनरी, रिमेंबर दिस इज इमेजिनरी। क्या बात कर रहे हो यार? रूट ऑफ -4 मतलब आप कह रहे हो कोई दो ऐसे नंबर दिखाओ जिनको मल्टीप्लाई करके -4 आ जाए? ऐसा तो नहीं होता। होता है, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, दे आर वेरी यूजफुल, बट वी आर नॉट स्टडिंग इमेजिनरी नंबर्स फॉर नाउ, बट वी नो इट्स इमेजिनरी, है ना।
It's not -2 because if you multiply -2 by -2, you don't get -4. So this is imaginary. 2i होता है. I की मैं बात नहीं कर रहा. Yeah, that is imaginary. But because it's a little out of syllabus now, we're not talking. All we are talking about today is अगर इसके बीच में ये पॉजिटिव नंबर है तो हाँ बात बनती है, नेगेटिव नंबर है तो नहीं बनती, है ना. तो उससे मेरे दिमाग में एक चीज और आती है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, एक्स का सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस माइनस होता है ना, तो यहां प्लस लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. एक तो ये रूट होती है जब प्लस ले लेता हूं, एक रूट होती है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, है ना. ये दो रूट्स होती है. अब सिंपल सी बात है, अगर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर वॉट एवर देयर इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ इट्स अ पॉजिटिव नंबर, आई विल बी एबल टू टेक दैट स्क्वायर रूट ऑफ दैट एंड एक बार ऐड कर दूंगा, एक बार माइनस कर दूंगा, मेरे पास दो रूट्स आएंगे. आई विल गेट टू रूट्स. अगर इसके अंदर पॉजिटिव नंबर है, अगर ये नंबर पॉजिटिव है, वॉट एवर रूट दैट इज कमिंग आउट, अगर ये 9 है तो 3 आ गया, एक बार 3 ऐड किया, एक बार 3 माइनस किया, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए. मतलब क्या कि वो पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो जगह काटा. मतलब जो जो फर्स्ट केस है, दिस इज मोर लाइक अ पैराबोला कटिंग द एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. पर अगर वो जीरो आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आ जाता है, अगर ये जीरो आ जाता है तो माइनस बी प्लस जीरो करूं चाहे माइनस बी माइनस जीरो करो, आई डोंट गेट एनी डिफरेंस. सो इट्स गोइंग टू बी इक्वल रूट्स. तो सेकंड केस क्या बन जाता है, कॉमन सेंस बोलती है, याद जिसने करना है, अभी गलत क्लास में आ गए हो, कि इट्स गोइंग टू टच, इट्स जस्ट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस, it's not going to cross it. Now third case is if b square minus 4ac is less than 0, मतलब अगर ये नेगेटिव नंबर आ गया, फिर तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड चले गया, है ना. तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका पैराबोला बस ये बन जाएगा, इट हैज नो रियल रूट्स. So when the b square minus 4ac, this thingy is positive, you get two roots, two distinct roots. If it is 0, you get two equal roots. And if it is less than 0, which is negative, then you get two imaginary roots. So let's start solving one of the questions here. So x square plus x minus 6. इसको प्लॉट भी करके देख लेंगे, बट एक बार पहले देख लेते हैं कि b square minus 4ac कितना आता है इसमें. तो b square, so if I say b square, so let's solve it here. So b square minus 4ac is equal to b कितना है, 1 है, b is 1. So 1 minus 4 times a1 है और c minus 6 है. देखिए ये आ रहा है ना, है ना. 1 है, a1 है और ये minus 6 है. So b square minus 4ac is coming out to be 1 minus, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया वो 24, so 25 आ गया. b square minus 4ac is coming out to be 25. So पॉजिटिव नंबर है, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, करके देख लेते हैं ना यार. So now you can also solve this. You need two numbers which multiply to -6, या quadratic से भी करोगे तो you get the same thing, but let's quickly do that. So x square, दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लाई करके -6 हो और ऐड करके 1 हो. So I can say plus 3x minus 2x प्लस 6, क्योंकि दो नंबर मैंने -6 के लिए लिए थे, -3 एंड +2, मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, ऐड किया तो 3 आ गया. अब इसमें से कॉमन आ गया x प्लस 3 और -2 कॉमन लिया तो x. कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे. नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है, रुकिए रुकिए रुकिए, -6 चाहिए. क्या गड़बड़ हुई है भाई, कोई बताएगा. 3 and 2, b square minus 4ac, 3 और -2 किया तो x कॉमन लिया, x प्लस 3 आया तो -2, x -3 आ रहा है. लेट हो गया, रुके रुके रुके. यहाँ क्या गलती हुई है भाई,
-6 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई करके, सो आई कैन टेक 3 times -2, that gives me -6, और 3 into 1 आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? -2 नहीं होगा बिकॉज -6, क्या गलत कर दिया भाई? x² + 3x -2x, -6 से तो आ रहा है, 3x और -2x ठीक तो किया फिर, तो ये कॉमन क्यों नहीं आ रहा है इसमें? इसका पैराबोला बना के देखते हैं ना, x² + x, जब आप फंस जाएं तो आप एक पैराबोला बना ले, रुकिए 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 रुकिए, x² + x - 6 बना लेते हैं ना, x² + x - 6, हाँ, तो 2 और -3 आ तो रहा है इसमें, देखिए देयर आर टू रूट्स हियर, 2 and -3, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? x + 3 और x - 2 आना चाहिए। एक काम करते हैं, व्हेन इन डाउट इरेज एवरीथिंग, व्हेन इन डाउट इरेज एवरीथिंग, इरेज एवरीथिंग, इरेज एवरीथिंग। हाँ, स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। एक तो गर्मी बहुत है यहाँ पर, और गर्मी से शायद दिमाग भी गर्म हो गया। तो x² है ना, वी हैव टू पुट द टू टर्म्स हियर, तो x² + 3x - 2x -6 = 0। अच्छा, वहां +6 रख दिया था तब, ठीक है, तो x कॉमन आ गया, x + 3 है ना, व्हेन इन डाउट जस्ट रीस्टार्ट एंड एवरीथिंग फॉल्स right on track, so x + 3 perfect = 0। Now you can factor out x + 3, so you get x + 3 and x - 2, you get 0. So you get x is equal to -3 like we saw on the Desmos graph, and or 2. So there are two distinct roots over here, है ना? यस यस रुद्रांश, वो गलती होती है, हर किसी से होती है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। अभी इसको देखेंगे, तो इसमें if I try to find b² - 4ac, so I'll say b², so what I'll do is b², so b, how much is b? B is -6 का whole square -4 times a is 1 times c is 9, so this is 36 - 36, which is 0. So two equal roots, and we can clearly see, मेरे को दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 9 बने और ऐड करके -6 बने, तो -3 -3. So, and you can also see this is x² - 2ab + b², so this is basically -3x + 9, and then if you take the x as a factor here, so you get x - 3, and then you take out -3 here, you get x - 3, and obviously that was a² - 2ab + b², which is x - 3 का whole square. So x is equal to 3 and 3, it is going to touch. So let's see on the Desmos, x² - 6x + 9. So x² - 6x, 6x + 9. So look at this beautiful graph out there, it shows you clearly कि वो x is equal to -3 को टच करके जा रहा है। No, this is how you can use Desmos. Desmos is very, very beautiful, very, very helpful. You should be using it as and when needed. Okay. अब last question is series में we can do x² - 2x + 3. So now let's say b². What is b? How much is b here? B is basically -2. So -2 का whole square -4 times a is 1, c is 3. Now this is 2, -2 का square is 4 minus 12, which is -8. It has imaginary roots. इसके फैक्टर करके आप कोई दो नंबर बता ही नहीं सकते, जिसको 3 करके मल्टीप्लाई आए और ऐड करके -2। एक बार करके देखते हैं डेस्मोस पे, x² - 2x + 3। डेस्मोस को बहुत यूज करिए बच्चों, x² - 2x, नहीं ये 2x + 3 कहाँ गया? ग्राफ ही नहीं दिख रहा। ये देखिए ग्राफ, this is my x axis and it is not even crossing that.
So you will not be able to find two roots because they are two imaginary roots. क्योंकि x एक्सिस ये है और ये ऊपर से निकल गया, ऊपर से निकल गया, समझ ही नहीं आया उसको. चलिए, and with that we move on to the exercise here very quickly. Let's see, find the nature of roots. Exercise 4.3. If real roots exist, then find them. So very easy question out there. So let's actually try this one. है ना, बी स्क्वायर का मतलब होगा -4√3. अब देखिए पूरा का पूरा जो x के साथ आ रहा है विद नेगेटिव साइन उसका स्क्वायर करना है. -4 AC, A is 3 and C is 4. तो क्या आ गया ये? 4 times 4 is 16. 16 times 3 is 48. 48 minus 48 is 0. So this is two equal roots. Sir, is there any other method to find roots of equations? Yes. एक तो मैंने फैक्टर करके बताया splitting the middle term से, एक completing the square हो गया, एक ग्राफिकल मेथड हो सकता है जैसे आप डेस्मोस करते हो ऐसे आप पॉइंट्स बना सकते हो ना, एक्स वाई, है ना, x कितनी वैल्यू, y कितनी वैल्यू, then you see where the parabola crosses the x-axis, and then another one is using the quadratic formula. There are so many methods out there. चलिए आगे चलते हैं. है ना, is the following possible? अच्छा, is the following possible? Again, exercise 4.3, NCERT is here. If so, determine the present ages. The sum of ages of two friends is 20 years. So एक की एज मान लेता हूं x, दूसरे की y. So they are saying x plus y is 20. क्योंकि एक की एज x है दूसरे की y होगी तो दोनों की सम 20 है. 4 years ago, 4 years पहले ये x minus 4 का था, 4 years ago y minus 4 का था, उनका प्रोडक्ट was 48. है ना, तो मतलब बेसिकली x minus 4 4 साल पहले इतने साल का था ये बंदा और ये इतने का था. अब इसमें प्रॉब्लम ये दो वेरिएबल्स, हमें दो नहीं चाहिए, हमें तो एक वेरिएबल चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट बाय रिड्यूसिंग अ वेरिएबल. यू कैन से ओके, हाउ अबाउट वी कैन इंप्लाई फ्रॉम हियर, दिस इंप्लाइज दैट x is equal to 20 minus y, isn't it? So x is equal to, this implies x is equal to 20 minus y. है ना, वही हो गया ना, x की वैल्यू 20 माइनस वाई, तो यहां पर y के टर्म्स में आ जाएगा. तो देयर इज ओनली वन वेरिएबल नाउ. सो यू कैन राइट 20 माइनस वाई माइनस 4 एंड देन ब्रैकेट में हियर y माइनस 4 इज इक्वल टू 48. है ना, अब ये दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन जाएगी. सो नाउ दिस माइनस 4 मेक्स दिस 16 माइनस y एंड देन y माइनस 4 is equal to 48. Now you say, okay, 16y, and 16 times 4 is minus 64, minus y square, minus minus plus हो गया, plus 4y is equal to 48. And you solve this, you find the discriminant of this, and you will see कि यार बात आपकी जमेगी नहीं, है ना, you will not get any value, क्योंकि आप जब b square minus 4ac इसको करोगे, I'm just trying to rush here because 1 hour होने वाला है and many students, है ना, requested me, सर 1 घंटे में क्लास खत्म कर दिया करो because there are other classes, so I'm trying to end this, but you write this in a proper format, y square, है ना, plus something y prime minus 40, माइनस में आ जाएगा, कर देता हूँ फटाफट से. चलिए तो थोड़ा सा और कर देता हूँ. तो y स्क्वायर हो गया 16 और ये प्लस 20y हो गया, है ना, माइनस इधर आएगा तो -112 is equal to 0. Now you will definitely see 20y होगा ना, हाँ 20y. अब आप करोगे ना b square minus 4ac, you will see what I'm talking about, है ना, वो आप कर लेना आगे. So NCERT PYQs के कुछ करेंगे, but are you taking Abhay Mahajan sir की classes also? I'm assuming because he has been taking a lot of classes, and I really want to speak a little about those classes. He has been taking a lot of math classes lately क्या काफी सालों से. So I just want to let you know कि आज शाम को भी एक बहुत अच्छा सेशन है, you should attend that. Now if the equations have equal roots, then बहुत अच्छा क्वेश्चन है.
ये मेरे ख्याल से 7 या 6 साल पहले आया था वन ऑफ द एग्जाम्स में। IOQM की वाईटी क्लास दिस सीरीज के बाद शुरू होगी। हाँ, वो अभय सर की आप क्लास ज्वाइन करते रहिए। मैं एनएससीपी के लेता हूँ, वो IOQM की लेते हैं। सीएस। सो इफ दीज हैव इक्वल रूट्स मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी 0, है ना। बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर व्हाट इज बी? बी ये पूरा बी है यार, ये पूरा बी है। सो व्हाट यू विल राइट इज -2 MP प्लस NQ, है ना। ये पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ये पूरे का स्क्वायर। सो बी, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 लिखते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि देन आई विल बी एबल टू क्रॉस आउट मैनी थिंग्स। सो मुझे लिखने की परमिशन दे दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 की जगह बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है ना। तो दिस इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कितना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टाइम्स c इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, है ना। ये हो गया। अब इसका पूरे का स्क्वायर करूंगा, पहले तो ये 4 बनेगा जो उससे क्रॉस होगा, दिख रहा है मुझे। बेटा देवांश गुप्ता, अभी मॉड्यूल 2 चल रही है, यू कैन ज्वाइन मॉड्यूल 2, इट विल बी बेनिफिशियल। मॉड्यूल 3 से पहले आप 2 ज्वाइन कर लो अभी। वैसे बाय द वे थर्ड मॉड्यूल विल स्टार्ट इन मिड में। सो ये 4 बनेगा और MP प्लस NQ का होल स्क्वायर बनेगा। सो लेट्स एक्चुअली राइट इट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सो दिस इज MP प्लस NQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और करें इसको एक्सपेंड करें, कर लेते हैं। 4 अंदर बनेगा m स्क्वायर p स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर p स्क्वायर। सो m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर q स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर, है ना। ये बनेगा। अब इधर MP प्लस NQ का स्क्वायर बन रहा है, तो पहले तो मैं 4 काट रहा हूँ यार, आपकी ड्यू परमिशन है ना। MP प्लस NQ का होल स्क्वायर, तो यहाँ यही लिख लेते हैं बिकॉज विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम विद दैट। सो MP प्लस NQ का होल स्क्वायर बनेगा m स्क्वायर p स्क्वायर, m स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर q स्क्वायर प्लस, है ना, 2MP NQ, 2MP NQ। अब इसमें देखिए क्या क्या क्रॉस आउट हो रहा है, m स्क्वायर p स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा, और इससे n स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी कट जाएगा, n स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी कट गया, राइट। एंड नाउ व्हाट यू गेट इज 2MP NQ इज इक्वल टू दिस। सो अब अगर मैं इसको वहां ले जाऊं तो व्हाट आई एम गेटिंग दिस इज इक्वल टू दिस। सो इफ आई ब्रिंग ऑल दिस ऑन वन साइड आई एम गेटिंग m स्क्वायर, एक व्हाइट कलर पेन से लिख लेता हूं। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ इज m स्क्वायर q स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर, एंड सी दिस इज 2MP NQ प्लस में माइनस बन जाएगा, माइनस 2MP NQ इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है बेटा, ऑल इन वन, है ना। नाउ दिस इज MA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज MQ माइनस NP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 0, दैट मींस mq इज इक्वल टू np। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर क्लियर जैसन, है ना, जैसन ठीक बोल रहा हूं मैं। हाँ, द रियल रूट्स ऑफ दिस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखने में लगता है पावर 2/3 है, पावर 1/3 है, इसका क्या करूं, है ना। ऑल यू डू इज विजुअलाइज के कोई भी चीज है, x की पावर 1/3 है यहां पर, और x की पावर 1/3 का स्क्वायर है वहां पर। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हो, आप बोल सकते हो लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू सम न्यू वेरिएबल p, कोई नया वेरिएबल p ले आया वहां पे। तो ये बन गया p का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको आपको दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके -2 आ जाए और ऐड करके 1 आ जाए, तो मतलब 2 एंड -1, 2 एंड -1। सो आई कैन से p स्क्वायर प्लस 2p माइनस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 और -1 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और ऐड किया तो ये आ गया। सो देन यू टेक द फैक्टर हियर, p प्लस 2 माइनस 1 p प्लस 2।
तो अब ये फैक्टर करोगे, p माइनस वन और p प्लस टू आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू वन और p इज इक्वल टू माइनस टू। ये आपका आ गया है ना। लेकिन वी आर नॉट डन, वी आर नॉट स्टिल डन, बिकॉज p तो हमने इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने x बोला था। तो अगर p वन है तो x की पावर वन बाय थ्री वन है, तो x की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन और x की पावर वन बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। ये मिला अभी तक मेरे को। तो वन बाय थ्री उसको तो उधर ले जाओ, क्यूब बन जाएगा। तो x की पावर x इज इक्वल टू वन का क्यूब है वन और x की इज इक्वल टू माइनस टू का क्यूब है माइनस एट। वन और नेगेटिव एट आर योर आंसर्स, है ना। दीपांशु मिल गया आंसर? हाँ। And again, very, very similar, 2015 ka, you can try this yourself, find the nature of roots. And we have done this kind of question. Let's do this beautiful question and end the class. Very, very good quality question here. So this is from R.D. Sharma, I think. Yes, this is from R.D. Sharma. A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. If both A and B work together and finish in 12 days, find the time taken by B to finish alone. जब वर्क की बात आती है ना, तो सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है, यू स्टार्ट बाय सेइंग लेट द टाइम टेकन बाय दिस पर्सन बी एक्स। अगर उसने एक्स डेज में काम खत्म किया तो एक दिन में वन बाय एक्स खत्म करेगा। ध्यान से देखिए, अगर किसी को काम खत्म करने में 20 दिन लगते हैं तो एक दिन में वन बाय 20 वर्क करेगा वो। अगर किसी को 50 दिन लगते हैं तो एक दिन में वन बाय 50 करेगा। उस तरह से विजुअलाइज कीजिए। सो स्टार्ट बाय सेइंग A takes x 10 less than by B. So let's say B takes x number of days to finish the work, है ना। वही तो मेरे को पता करना, x पता करना ना, find the time taken by B. So let's say B takes x days, तो A कितना लेगा? Then A takes 10 less days, मतलब x minus 10 days, है कि नहीं। उन्होंने बोला ना A को 10 दिन कम लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इन वन, बहुत बढ़िया, है ना। अब बोलते हो टुगेदर वो 12 दिन में काम कर रहे हैं। कई बार मन में आता है इनको ऐड करके 12, नहीं नहीं, टुगेदर 12 दिन में काम कर रहे हैं। तो आप इस तरह को एक दिन में 1/12 कर रहे हैं, मतलब एक दिन में बी कितना काम करता है? एक दिन में बी काम करता है 1/x और एक दिन में ए काम करता है 1/x/10, x माइनस 10। देखिए ध्यान से देखिए, बी को x डेज लगते हैं तो एक दिन में उसने किया 1/x। अगर उसको 50 दिन लगते तो 1/50, 100 दिन लगते 1/100। सिमिलरली ए ने एक दिन में इतना काम किया और टोटल काम हुआ 1/12। टोटल काम हुआ 1/12। इस तरह की इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी हमेशा। वर्क, क्योंकि इट्स एन इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, ये आपके एमएटी सीएटी हर एग्जाम में आते हैं इस तरह के। अब आप इसका एलसीएम ले लो और ऊपर ले जाओ। सो दिस कम्स आउट टू बी 2x minus 10 over x square minus 10x is equal to 1/12. And this equation will reduce to 24x minus 120, minus 120 is equal to x square minus 10x, x square minus 10x। और इसको अब और सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ रहा है x square minus 34x, x square minus 34x plus 120 is equal to 0, है ना। अब ऐसे दो नंबर दिखाइए जिनका मल्टीप्लाई करके 120 आता हो और ऐड करके -34। तो बेसिकली -30 एंड -4, सो x स्क्वायर minus 30x minus 4x plus 120 is equal to 0। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। सो नाउ इफ यू टेक x कॉमन हियर, you get x minus 30 minus 4 common, so x minus 30 is equal to 0। So x is equal to 4 और 30। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर x 4 है, b को 4 दिन लगते हैं, तो a को x minus 10, माइनस में तो नहीं आ सकता ना यार कि भाई मैं -6 डेज में काम कर दूंगा। -6 डेज का क्या मतलब? अगर मैं काम करता हूं तो -6 डेज लगते हैं, नहीं करता तो बेटर था भाई, कैसी बातें कर रहे हैं।
So this you can rule out. You can say, no, this doesn't look like realistic number there. So B takes 10 number of days. That's it. Clear है तो thumbs up दीजिए दीपांशु, Jason, everybody, all in one, Samyak. All I've done is एक दिन में 1/12 काम हुआ है ना, तो A का काम कितना है प्लस B का काम कितना है, दोनों को ऐड किया, and that's how you do that. है ना, अगेन एज ऑलवेज तालियां तो बनती हैं यार, बिकॉज यू मास्टर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन क्लास विदाउट रेक्टिफिकेशन. सो देयर वर multiple methods I used. One is splitting the middle term, which can also be called as factorization. Secondly, we use the quadratic formula. Thirdly, we saw Desmos. Desmos आपके एग्जाम में अलाउड नहीं होगा ऑब्वियसली, बट रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, और वैसे भी ग्राफ आप कभी भी बना सकते हैं. So again, है ना, this is where you get homework. Homework already publish हो चुका है. So it's already there on the Telegram. So please join this Telegram channel so that you can get further updates also. And anybody who's interested in knowing about the Olympiad exams and courses, I'm staying here for another 2-3 days. है ना, आयुष्मान मैं टेलीग्राम में प्रूफ लिख के दे दूंगा अच्छे से, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर में करूंगा मैं उसको, 4-5 लाइन से ज्यादा नहीं करूंगा, है ना. So anybody who's interested to know can stay here, others can leave, and soon I'll be maybe making the 5th video which is on arithmetic progression. रट्टाफिकेशन नहीं पता भाई, रट्टाफिकेशन होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. This is called रट्टाफिकेशन. Yes, memorization. Yes. चलिए, ना ऑब्वियसली अब ये हो गया, अब क्या करें, तो नेक्स्ट लेवल इज ओलंपियाड की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं. मैं फिजिक्स का जेसन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूंगा, बिकॉज बाय हार्ट आई एम ए फिजिक्स टीचर, इसीलिए मैंने उसका नाम एक्सेलरेटेड मैथ्स रखा हुआ है, कि भाई मैथ्स पढ़ा रहा हूं पर ऐसा ना पढ़ाऊं कि फिजिक्स मेरे से बुरा मान जाए, तो मैंने वहां एक्सेलरेटेड मैथ्स लिख दिया कि भाई फिजिक्स भी बुरा नहीं मानेगी, है ना, फिजिक्स तो मैंने पढ़ाना ही है. So you can prepare for Olympiads, and obviously Dhruv got a physics gold medal, in international physics Olympiad. हमारा अपना student, part of the team here. Again, Aditi and Avnish, silver medal in 2023 chemistry Olympiad, international level की अब बात कर रहे हैं. So these are the courses that we offer, and I'm also planning to start a course for NSCP 2025 very soon. So stay tuned on that Telegram channel. अभी 2024 के साथ साथ 2025 का भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज सम स्टूडेंट्स वांट टू टेक इट स्लो एंड गो मोर इन डेप्थ, है ना. नेक्स्ट क्लास समय कल मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो पाया तो परसों तो पक्का ही पक्का, है ना. इस वीक में 2 या 3 क्लासेस, 3 पूरी कोशिश करूंगा इनफैक्ट. Now the course for NSCP is every Monday, Wednesday, Friday. अभी क्लास है 6 से 7:30. कुछ students obviously they are here also. And 18 March we started batch, and because Olympiad classes are not about making money, we are putting the price very minimal. Module 2 is only 2000 rupees. I mean 2000 rupees 2 महीने के, है ना. पॉपकॉर्न भी कितने के आ जाते हैं, anyways, हाँ. So these are the modules that we have divided into. So this is all 11th grade का portion. Let me move this out from here. So this is all 11th grade का portion. This is all 12th grade का portion. The target date is October को खत्म करना है. जैसे November में we are going to start the final revision, है ना. PYQs बड़े aggressively and all that, because November में तो exam है. फिजिक्स क्लास कब शुरू होगा रैंडम, आई विल प्लान आफ्टर आई फिनिश द मैथ्स का मॉड्यूल. असाइनमेंट आ गया ऑलरेडी उधर. सो यस, आज का एग्जाम असाइनमेंट आ चुका है आपके टेलीग्राम में. सो दीज आर द मॉड्यूल्स, वी आर इन मॉड्यूल नंबर 2 राइट नाउ. तो अभी सर्कुलर मोशन चल रहा है. नाउ सम स्टूडेंट्स कॉन्टेक्टेड मी कि ये मॉड्यूल नहीं करा, इसमें ज्वाइन कर लूं. कर सकते हो इफ यू हैव जोश, एनर्जी, एंथुजियाज्म, है ना. नो, दे आर नॉट फ्री. समय आई एम रियली सॉरी बेटा, दीज आर पेड बैचेस. So it's 2000 rupees for each module, which is like bare minimum we could afford, क्योंकि हमारा अपना भी खर्चा होता है क्लासेस करने का. That's all we are not making any money with these. So these are all bare minimum we are charging. And NSCP के कुछ questions के PYQs and all that I keep discussing on YouTube also. Sir, yeah, my Telegram channel ID is Devansh beta. My ID is Bhavdeep Singh Sethi. है ना. So stay tuned on this Telegram channel. या यू नीड बेसिक मैकेनिक्स की नॉलेज ऑल इन वन, यूर राइट, है ना. अब अगर एनएससीपी बैच में आके अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सिर्फ जोश चाहिए आपको,
बट इफ अ स्टूडेंट कम्स हियर एंड से सर स्पीड क्या होता है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, देन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा, है ना। यस जेसन, वेलकम टू क्लास 10th की फर्स्ट क्लास, है ना। तो अगर कोई आके पूछे भाई डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो मेरे लिए चैलेंजिंग होगा, स्टूडेंट के लिए भी होगा। एंड इट्स नॉट अ जोक, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबॉडी, आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल हियर, कि थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और उसके बाद बस एक जोश की रिक्वायरमेंट आपकी। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चे। नहीं 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 नहीं, सम्यक आदित्य बेटा, ये 11th 12th का सिलेबस है, बट दैट डजंट मीन 11th 12th के सिलेबस से एनईसीपी हो जाएगा। दिस इज ऑल जे एडवांस के लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। या सिलेबस यही है, टॉपिक्स यही है जो 11th 12th में, बट गोइंग मोर इन डेप्थ, मोर कंसेप्चुअल, दैट्स व्हाट यू नीड। ठीक है, वेक्टर्स एंड ऑल एवरीथिंग यू हैव टू नो ऑल इन वन। ओके, चलो, कैटास्ट्रोफिक wasn't live today, that's fine, I know you बेटा, you with your जोश you are going to watch recording anyways, तो चलिए। Tell the spelling of your telegram id। हाँ, तो my telegram id is one word है, भवदीप सिंह सेठी, VDEEP सिंह SINGH, और उसी के साथ वर्ड है सेठी, सिंह सेठी, भवदीप सिंह सेठी। So you search for that. But if you're here, I mean, you're getting all the updates anyways. ठीक है, चलिए, thank you so much students. It was fun teaching you. Keep up the high josh and a high energy level and keep coming to